students, today we are start with the biology part for class 10th, that is chapter number 6, life processes. As all we know that for a life of any living organisms, life processes should be must. And in the life processes, various parts we have to be discussed, that is nutrition, respiration, transportation and excretion. All these parts are very necessary for the living organisms, that for the survival of the living organism. So what do you mean by the life processes? The process which maintain the body function and necessary for survival are called life processes. ऐसी प्रोसेसेस जो कि क्या मेंटेन करती हैं, बॉडी को मेंटेन करती हैं या बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करती हैं एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, और वो प्रोसेसेस जो होती हैं वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए जो होती हैं वो जरूरी होती हैं. दैट processes are known as life processes. In other words, all the processes which together keep the living organisms alive and perform tasks to maintain the body are called life processes. दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो लाइफ प्रोसेसेस जो होती हैं वो क्या करती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करती हैं, उनके बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करके रखती हैं. और जब उनके बॉडी फंक्शंस मेंटेन हो जाते हैं तो उसके बाद उनको सरवाइव करने में जो वो हेल्प करती हैं, दैट आर नोन एज द लाइफ प्रोसेसेस टू मेंटेन द बॉडी as well as to maintain the body functions and for the survival. Such type processes are known as the life processes. For example, various life processes are used for the survival of any living organisms. Number 1, nutrition. Number 2, respiration. Number 3, transportation. And the last one is the excretion. Nutrition. Nutrition means पोषण. क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिशन का होना जो बहुत जरूरी है, उसकी बॉडी में पोषण का होना बहुत जरूरी है. सेकेंड इज द रेस्पिरेशन. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जब धरती पर रहता है या धरती पर जिंदा रहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा पोषण के बाद जो जरूरी चीज होती है दैट इज द रेस्पिरेशन, सांस लेना. रेस्पिरेशन के बाद नंबर 3, ट्रांसपोर्टेशन. हम जो भी चीजें खाते हैं, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी में लेते हैं, दैट मीन्स वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट होने चाहिए. तो दैट न्यूट्रिएंट्स, दैट फूड मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. एंड द लास्ट इज द एक्सक्रीशन. हम जो भी खाते हैं, जो भी चीज लेते हैं, दैट मीन्स आफ्टर दैट खाना जो हमने खाया दैट इज डाइजेस्टेड टू द बॉडी एंड आफ्टर दैट द वेस्ट मटेरियल इज टू बी excrete, that is to be through out with the help of the anus. वो anus के थ्रू जो था वो वेस्ट मटेरियल जो था वो बाहर निकल जाता है. That means all these 4 types of the processes, life processes, are necessary for the survival of any living organism. So first of all we will discuss about the nutrition. Nutrition क्या चीज है, पोषण क्या चीज है. The process of taking nutrition, the process of taking nutrients, that means जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी फूड हम टेक करते हैं तो उस खाने में क्या होते हैं, प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं. जब उस खाने में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होंगे, एट दैट टाइम वी कैन से दैट आवर डाइट इज बैलेंस्ड डाइट. क्योंकि खाना हर कोई खाता है, पर उस खाने में, उस फूड में, उस डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत जरूरी है. अदरवाइज अगर उस डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना हो, दैट मीन्स योर डाइट शुड नॉट बी बैलेंस्ड. And if your diet is not balanced, that means the person is suffering from number of diseases. तो न्यूट्रिशन क्या है? The process of taking nutrients from food. हम जो भी न्यूट्रिएंट्स कहां से लेते हैं? फूड से लेते हैं. हमें जो भी न्यूट्रिएंट्स खाने से मिलते हैं, that process is known as the nutrition. उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन. And various type of the nutrients are carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. All these are the various types of the nutrients that are present in the food. And there are the mode of nutrition. There are 2 types of the mode of nutrition. The first mode of nutrition is the autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition, it is a process in which organisms produce their food. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड
फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, और कहां से प्रिपेयर करते हैं? फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स सच दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होते हैं, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड themselves, and किसकी प्रेजेंस में? in the presence of sunlight, and that mode of nutrition is known as autotrophic nutrition. In autotrophic nutrition, we are already saying that it is the process in which the organisms prepare their own food themselves in the presence of sunlight. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां पर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपना खाना जो वो स्वयं बनाते हैं, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, और इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है दैट इज द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। In this, organisms depend upon other organisms for their food. In this, the organisms depend upon other organisms for food to survive. ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां पर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर निर्भर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग्स एंड अमीबा। ह्यूमन बीइंग्स एंड अमीबा आर द एग्जाम्पल ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं, जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, वी कांट प्रिपेयर अवर ओन फूड अवरसेल्फ। हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, बट वी कैन डिपेंड अपॉन अदर्स फॉर अवर फूड। हम अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं, जैसे वीट, राइस, मेज, पल्सेस, ये सब चीजें हमें कहां से मिलती हैं? प्लांट से। दैट मीन्स वी डिपेंड्स अपॉन प्लांट्स फॉर अवर फूड। After the heterotrophic nutrition, next is the nutrition in plants. Nutrition in plants कैसे होता है? तो first process is the photosynthesis. Photosynthesis means प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? तो photosynthesis क्या है? The process in which the green plants convert simple inorganic materials such as carbon dioxide and water into complex organic food material, that is C6H12O6, that is the formula of the glucose, in the presence of chlorophyll and sunlight. तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि plants can prepare their own food themselves in the presence of sunlight, and the green plants have the green colored pigment that is chlorophyll. ये जो पौधे होते हैं इनमें एक हरे रंग का जो है एक क्लोरोफिल होता है, पिगमेंट होता है हरे रंग का, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? सन की रेज को ट्रैप करते हैं, सन की रेज को खींचते हैं, और जैसे ही सन की रेज को खींचते हैं तो ये अपना खाना जो था वो खुद बनाते हैं। और किस फॉर्म में बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की फॉर्म में। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब आपस में मिक्स कर जाएंगे, दैट मीन्स दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बोनिक एसिड। और किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। इसमें फॉर्मूला दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को अगर हम रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, वी गेट C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज। दैट मीन्स they can prepare their own food themselves in the presence of sunlight and chlorophyll in the form of glucose plus oxygen. Next, what are the events occur during the photosynthesis? photosynthesis के दौरान कौन से events जो होते हैं वो occur करते हैं? First event is the absorption of light energy by chlorophyll. जो light energy है वो absorb होती है, और किसके द्वारा absorb होती है? By the process of क्लोरोफिल, जो कि क्लोरोफिल ऑलरेडी किसमें प्रेजेंट होता है? ग्रीन प्लांट्स में। सेकेंड स्टेप है कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी। जो कन्वर्शन है, जो लाइट एनर्जी है, जो पौधे जो होते हैं वो अपना खाना जो वो प्रिपेयर करते हैं किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। दैट मीन्स दैट लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द केमिकल एनर्जी, एंड और जब वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, आफ्टर दैट स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और वो वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करती है? स्प्लिट कर देती है। और स्प्लिट किस में करती है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। किस फॉर्म में स्प्लिट करती है? हाइड्रोजन एंड
ऑक्सीजन की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल वाटर का फॉर्मूला क्या है, दिस इज वाटर। तो हमने क्या कहा कि जो प्लांट्स है इनमें जो लाइट एनर्जी होती है, दैट लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द केमिकल एनर्जी, एंड आफ्टर द कन्वर्टिंग इनटू द केमिकल एनर्जी देयर इज अ स्प्लिटिंग ऑफ द water molecules into hydrogen and oxygen, that means H2 plus O2. So there is a splitting of water molecule, and the last is the reduction of carbon dioxide to carbohydrates. लास्ट में ये है कि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। तो हमने पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में कि addition of oxygen and removal of hydrogen, and addition of hydrogen and the removal of oxygen, and addition of hydrogen and removal of oxygen. These are the oxidation and reduction processes that occur simultaneously, and when both the oxidation and reduction occur simultaneously, that reactions are known as the redox reaction. तो यहाँ पर भी क्या है कि रिडक्शन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। तो अभी जैसे मैंने डिस्कस किया कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, दैट मींस इन दिस प्रोसेस द प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड देमसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो उसी से रिलेटेड हम आगे जो कंसेप्ट देखेंगे, क्लोरोफिल से रिलेटेड जो कंसेप्ट है दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड जो है वो सपोज करो हमने एक डायग्रामेटिकली एक ट्री लिया हुआ है और उस ट्री से साथ हमने एक लीफ ली हुई है, ठीक है, तो दिस इज द लीफ। तो अब यहां पर जो इसका लीफ का जो एक मोटा सा हिस्सा जो होता है, वैक्सी पार्ट जो होता है, तो अगर हम उसको माइक्रोस्कोपिकली अगर उसको हम उसका क्रॉस सेक्शन या उसकी सेक्शन कटिंग करते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो उसमें हमें बाहर जो है वो एक मोटी सी वैक्सी लेयर दिखाई देती है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। और उस क्यूटिकल के नीचे जो होते हैं वो सेल्स होते हैं और उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मस। दे आर नोन एज एपिडर्मिस। और उस एपिडर्मिस के नीचे जो होते हैं वो प्लांट सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, प्लांट सेल्स। उस एपिडर्मिस के नीचे क्या होंगे, प्लांट सेल्स। और उस प्लांट सेल्स के भी प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स ऑलरेडी वी आर डिस्कस्ड इन द 9th क्लास। तो इन प्लांट सेल्स के बीच में क्या होंगे, ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि ग्रीन कलर के होते हैं। क्या होंगे, ऑर्गेनेलीज। दीज आर द ऑर्गेनेलीज, स्मॉल ऑर्गेनेलीज which are present in the plant cell and these are green in color. So chloroplast क्या है, these are small organelles. chloroplast क्या है, ये small organelles हैं found in plant cells. तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये एक तरह से स्मॉल ऑर्गेनेलीज है जो कि किसमें पाई जाती हैं, प्लांट सेल्स में पाई जाती हैं, एंड इट कंटेन्स क्लोरोफिल। और ये क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, क्लोरोफिल कंटेन करते हैं विच एब्जॉर्ब सनलाइट। और यही जो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं जिसमें कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये क्या एब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो देयर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज कंप्लीट, and after the autotrophic nutrition we shift to the heterotrophic nutrition. और heterotrophic nutrition वो nutrition थी जिसमें कि organisms depends upon others for their food. They can't prepare their own food themselves. For example, human beings, animals, they totally depend upon others for their food. So there are 3 modes of the heterotrophic nutrition. First mode of heterotrophic nutrition is saprophyte nutrition. Second is the parasitic nutrition, and the third is the holozoic nutrition. So in the saprophytic nutrition, the mode of nutrition in which organisms obtain food from the dead and the decaying organic matter. तो saprophyte nutrition वो nutrition है जिसमें कि organisms जो होते हैं वो अपना भोजन जो है, खाना जो है वो obtain करते हैं फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। वो मतलब मरे हुए जानवरों के ऊपर या सड़ी गली हुई चीजों के ऊपर जो होते हैं वो अपना खाना जो होता है वो उस खाने के लिए वो निर्भर होते हैं। Such type of nutrition is known as the saprophytic nutrition. For example, bacteria and fungi. These are the example of the saprophyte nutrition. And after the saprophyte nutrition, the second mode of nutrition, heterotrophic nutrition, is parasitic nutrition. And the mode of nutrition in which
which organisms obtain food from another organisms without killing them. ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे डिपेंड अपॉन अदर्स फॉर देयर फूड, वो अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं या अपना खाना जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स से लेते हैं। और कैसे लेते हैं? विदाउट किलिंग देम, वो उनको मारते भी नहीं है और बिना मारे हुए वो उनसे खाना भी प्राप्त कर लेते हैं। सच टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन इज नोन एज द पैरासिटिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो एंड टैबवॉर्म। मॉस्किटो जो है वो ह्यूमन के ऊपर बाइट करता है और बाइट करने के बाद इंजेक्ट करने के बाद उस ह्यूमन बीइंग की बॉडी से वो ब्लड भी निकाल लेता है। दैट मीन्स वो उस पर्सन को, उस ह्यूमन बीइंग को बिना किल किए हुए वो अपना खाना भी प्राप्त कर लेता है और उस पर्सन को मारता भी नहीं है। एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज द टैबवॉर्म। टैबवॉर्म जो है वो आदमी की बॉडी में रहता है, अंदर रहता है, उसके बावजूद वो उसके बॉडी से ही वो खाना प्राप्त करता है और उस पर्सन को किल भी नहीं करता है। तो दैट इज द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड द लास्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व्स ingestion, digestion, absorption and assimilation of liquid or solid organic materials। ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहां पर क्या होता है? इंजेशन, खाने को जो हम खाते हैं दैट इज द इनटेक ऑफ फूड। डाइजेशन, खाने के बाद उसको पचाना, डाइजेस्ट करना। एंड आफ्टर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्ट होने के बाद उस खाने का एब्जॉर्ब होना बॉडी में। एंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन देयर इज एसिमिलेशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट, और उसके बाद उस वेस्ट मटेरियल का एसिमिलेट होना, बॉडी से उसका बाहर निकलना थ्रू द एनस। Such type of the nutrition is known as the holozoic nutrition, and the main examples of the holozoic nutrition are animals and the human beings.